Hello everyone. Today we are going to start with a new topic, that is decimals. In previous video we have finished learning the fraction. Today let us learn about the decimal. All right. Now can you see this number? Now this number, that is 7532, and this there is a small dot here. Now this dot, we call this dot has a decimal point, and this full number, we call this full number as a decimal number. So जो भी नंबर के बीच में एक decimal point आता है वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? Decimal number बोलते हैं. ठीक है? Alright, understood till here? Now ये जो डिजिट्स है विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डिजिट को हम लोग बोलते हैं इंटीगर पार्ट, और द डिजिट विच आर देयर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दैट इज 812, इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल पार्ट. क्लियर टिल हियर? नाउ लेट अस लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू. नाउ द फर्स्ट डिजिट 2, कैन यू सी दिस 2 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट? तो ये अगर एक डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 है, करेक्ट? नाउ दिस 2 स्टैंड्स ऑन द वंस प्लेस, 3 स्टैंड्स ऑन tens place, 5 stands on 100 place, and 7 stands on 1000 place, which we have already learned. Okay? Now we will learn about these digits which are there on the right side of the decimal point. Clear? Now the first digit 8, this 8. Okay, now this 8 on the right of the decimal point is the 10th digit, and it represents 8 tenths. Can you see 8 tenths? All right, you can this is the way you write it in the decimal, and if you have to write it in the fraction, you can write it 8 upon 10 in this manner. All right, now this one stands on, or the second digit 1 on the right of the decimal point is a 100 digit, and it represents 100. This way we can write it, in this way we can write it in decimal, and if you have to write in a fraction, you can write 1 upon 100. Okay, now the last number, that is the next 2. Now this one, it is on the 1000th digit, and it represents 2000. All right, and if you want to write it in the fraction form, we can write it like this. Clear till here the place value? Okay, so now see this place value, decimal place value chart. This is a decimal point, this is a whole part, and this is a decimal whole part. Okay, now the first here is ones, tens, hundred, thousands and so on. और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स आता है वो हम लोग उसको कैसे बोलते हैं? टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड. ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो. ठीक है, 1/100 एंड सो ऑन. क्लियर? ठीक है, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आया? Now, let us study the exercise 2.5. Write the place value of digit 2 in the following decimal numbers. Now, if you see this, all the numbers are decimal number. Why they are decimal numbers? Because they have a decimal point. Okay, so first number is 2.56, and we have to write the place value of this digit 2. Okay, so what is the place value of this digit 2? 2 stands on which place? Ones place. So what will be our answer here? Your answer will be 2. All right, or you can write like that also. In the full form, if you want to write, you can write like this: the place value of digit 2 in 2.56 is 2. Clear? Or you can directly write 2 also. Understood? Let us do the second sum now. Now second sum is 21.37. Alright, now here we can do directly. 2 stands on which place? Tens place, correct? So we can directly write that is 20. Because they are telling us to write the value, we are writing the value. Okay? What is the third one? Now the third one is 10.25. Now here 2 stands on 10th place. 10th place. So how we are going to write the 10? 2 upon 10. So this is a place value. Alright. Now the third one is, the fourth one is 63.352. Now here also you can directly write this 3 stands on 10th place, 5 stands on 100th place, and 2 stands on 1000th place. Okay? So what you can do? You can directly write the place value, that is 2 upon 1000. Clear how to do this place value? It is very easy. Now let us move to the second question, that is convert the following decimal number to fraction in the simplest form. So this is a decimal number because there is a decimal point in it. Okay? And you have to convert this number to a fraction. So how to convert this? First let me write the question, and now you can write this into fraction. How you will write? That is, you can write 8 upon 10. Alright, now they are telling you to, in the simplest form, you have to write the fraction, you have to convert it into fraction and write this into a simplest form. Simplest form means what? In the lowest form. So can you reduce this number? Yes. Both these numbers are divisible by 2. So we will write here 2 fours and 2 fives. So what is your answer basically? 4 upon 5. Clear? Alright, let us do the second one now. The second one is 0.225. Let us write it into a fraction form. So how you are going to write? 225 upon 1000. Now why you are going to write 1000? Because here there is a 1000 place. It's 3 numbers. The last number 5 stands on the 1000 place. That is why you have to write into 1000. Clear? Now can you reduce this number? Yes. 25 nines and 25 40s. So your answer is 9 upon 40. If you don't know the table of
25, then what you can do is you can reduce with the help of the 5 1 का टेबल. ठीक है, 5 1 के टेबल के साथ भी आप रिड्यूस कर सकते हो. दैट इज 5 5 4 20, 2 and 45 एंड देन 5 200. ठीक है, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो. दैट इज 5 9 and 5 40. ठीक है, so in this way you can get, if you don't know the table of 25, you can do it with the help of the table of 5. So this is your answer. Clear till here? Now let us do the third sum. The third sum is, that is 0.0092. Now let us convert this into also into fraction. How are you going to do it? 92. अभी जिनको इसके प्लेस वैल्यू में डिफिकल्टी होती है वो क्या करें, यू नो, अब डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है ना टोटल. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि ये डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है. ये एक डिजिट है 1, ये एक डिजिट है 2 3 एंड 4, 4 डिजिट है. तो आप 1 लिखोगे एंड 4 zeros लिखोगे. अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इन दिस वे यू कैन डू इट. ठीक है ना, ये नंबर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. येस, वी कैन रिड्यूस इट बिकॉज बोथ आर रिड्यूस, बोथ द नंबर्स वी कैन रिड्यूस बाय 2. ठीक है, सो 2 लिखते हैं. 2 के टेबल में 92 आता है कभी, सॉरी, कभी आता है 246. सो आई विल राइट हियर 46 and this also I will cancel and I will write to 5,000. ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग वापस, ये दो नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइजिबल है. सो 2 23 एंड 2 2005. ठीक है, यू कैन डिवाइड एंड सी व्हाट आर यू गेटिंग, 23 अपॉन 2500. ये आपका आंसर आ जाता है. क्लियर? नाउ लेट अस डू द फोर्थ सम. नाउ द फोर्थ सम इज, आई विल राइट द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 3.025. अभी यहाँ पे होल नंबर है. पहले हम जो सॉल्व किया था वहाँ पे सभी जगह पे क्या था, 0 0 था. ठीक है, तो वी डू नॉट पे अटेंशन इट. पर यहाँ पे अभी 3 होल नंबर है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 3 हियर प्लस, ना इसको हम लोग को प्लेस वैल्यू में करना है. तो हाउ वी विल राइट इट, 25 अपॉन, नाउ इसकी अगर प्लेस वैल्यू लिखनी है तो व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू. यहाँ पे 0 नहीं है. ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है. दिस नंबर इज 02. ऑलराइट, फिर अगर इस नंबर को हम लोग को प्लेस वैल्यू में लिखना है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट 1000. ठीक है, गॉट इट. नाउ कैन वी रिड्यूस दिस, 25 के टेबल में 1000 आता है. सो 25 1 एंड 25 40. ठीक है, तो बेसिकली आपका आंसर क्या आया यहाँ पे, 3 1 अपॉन 40. ठीक है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको चाहे तो आप इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अगर इम्प्रॉपर, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू मिक्स फ्रैक्शन. अभी यहाँ पे हम लोग को डेसिमल दिया हुआ है और वो हम लोग को क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हाउ आर यू गोइंग टू डू द मिक्स फ्रैक्शन. द फर्स्ट सम इज 5.05. ठीक है, so now what are you going to do here is you're going to expand. That is how you're going to expand 5 plus 5 upon, basically place value में लिखना है यहाँ पे. ठीक है, now can we reduce this? Yes, हम लोग reduce कर सकते हैं. That is 5 1 and 5 20. So basically आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, 5 1 upon 2. तो ये डेसिमल नंबर था, इसको हम लोग ने क्या किया, मिक्स में कन्वर्ट किया. अंडरस्टूड? चलो लेट अस डू द सेकेंड सम नाउ. सेकेंड सम इज 63.125. ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग, 63 वैसे के वैसे लिखेंगे प्लस 125 वी विल राइट ऑन द टॉप एंड 1000 वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. ठीक है, ऑलराइट. नाउ कैन वी रिड्यूस दिस? यस, वी कैन रिड्यूस दिस. 125 के टेबल में 1000 आता है. ठीक है, सो 25 1 25 8. सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 63 वैसे के वैसे लिखेंगे 1 अपॉन 8. क्लियर कैसे किया? लेट अस डू द थर्ड सम नाउ. द थर्ड सम इज 17.075. सो नाउ अगेन वी विल राइट 17 एज इट इज, और ये नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू में लिखेंगे. दैट इज 75 अपॉन 1000. ठीक है, कैन वी रिड्यूस दिस? यस, वी कैन रिड्यूस दिस. 5 के टेबल में जाएगा ये. सो 5 15 एंड 5 200. ओके, देन अगेन वी कैन रिड्यूस दिस. 5 3 15, 5 40 200. ओके, तो आंसर क्या आया हम लोग का, यहाँ पे 17 वैसे के वैसे लिखेंगे 3 अपॉन 40. ठीक है, क्लियर? चलो नाउ लेट अस डू द फोर्थ सम. नाउ द फोर्थ सम इज, आई विल राइट डाउन द फोर्थ सम, दैट इज 317.0006. This is 6 here. ठीक है, so now how to do this? First we will write 317 as it is. We will put the plus sign. We will only write 6 here and down. ये जो है उनकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 10,000. So we write it 10000. कैन यू डिवाइड दिस? यस, दोनों 2 के टेबल में आएंगे. सो 2 3 एंड 2 5,000. ठीक है, सो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, 3173 अपॉन 5000. क्लियर? एकदम ईजी, कुछ नहीं है. आपको सिर्फ ये जो होल नंबर है वो वैसे के वैसे यहाँ पे लिखना है, और जो डेसिमल पार्ट है उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है. क्लियर हाउ टू डू?
चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, आई जस्ट इरेज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर. अभी हम लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन को हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो बिफोर वी डू दिस हम लोग को एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि 5 20 ज़ा 100, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10 जो भी है आप याद रख सकते हैं. देन 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1000 एंड देन 625 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 10,000. ठीक है, ये आपको याद रखना है. क्यों याद रखना है मैं आपको अभी बताती हूँ. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी डू इज 3/5 हम लोग लिखते हैं. ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए, इधर वी वांट 100 10,000 या 10,000, ऐसा हम लोग को एक कुछ तो यहाँ पे नंबर चाहिए. वाई? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, हम लोग 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम लोग 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आंसर वी विल गेट हियर 10. ठीक है, अभी नीचे भी है मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ 6 3 2 ज़ा इज 6, सो 6/10 आया. अब ये फ्रैक्शन, अभी अगर ये फ्रैक्शन को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.6. वाई 6 0.6? देखो यहाँ पे एक ही जीरो है. ठीक है, मतलब ये जो नंबर है वो 10 की जगह पे होगा. दैट इज वाई 0.6, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नंबर 10 पे है ना. सो वी राइट दिस लाइक दिस इन द डेसिमल फॉर्म. क्लियर? लेट अस डू द सेकंड सम नाउ. सेकंड सम इज 7/8. ठीक है, नाउ 7/8 वी विल राइट एज इट इज, और ये 8 को ऐसे नंबर के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कि हम लोग को आंसर क्या मिले, 1000 में मिले, 10,000 मिले वगैरह ऐसे. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज 8 को अगर हम लोग 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 1000. ऑलराइट, सो अगर नीचे भी 125 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सो ऊपर भी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई 125 के साथ ही करना पड़ेगा. सो नाउ अगर 125 को 7 के साथ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, वी विल गेट द आंसर एज 875. ठीक है, सो आई विल राइट हियर 875. नाउ दिस इज अगेन अ फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कितने जीरोज है, 3 जीरोज है. तो यहाँ पे 875 वैसे के वैसे लिखेंगे. 3 जीरोज है तो काउंट 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो. 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, सॉरी 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो. क्लियर कैसे किया? ऑलराइट, आई विल जस्ट इरेज इट एंड देन वी विल डू द थर्ड सम. नाउ ये जो थर्ड सम जो आप देख रहे हो वो क्या है, बेसिकली ये जो थर्ड सम है दैट इज इनटू मिक्स. ओके, तो ये मिक्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. ऑलराइट, सो कन्वर्ट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, योर आंसर विल बी 16 3 ज़ा 48. 48 प्लस 5 इज 53. सो वी राइट इट 53/16. ठीक है, हमें 16 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 625. ऑलराइट, अभी ये सम करने के लिए 2 मेथड है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगी, आपको जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हो. ठीक है, सो आई विल राइट हियर 625. अभी नीचे भी 625 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 625 को अगर आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 10,000. ठीक है, दिस वाज इजी, बट नाउ दिस इज डिफिकल्ट. ये दोनों बड़े नंबर है एंड टू मल्टीप्लाई दिस इज अ डिफिकल्ट, बट वी विल डू इट वंस एंड देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, 625 को जब आप 53 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज 33,125. ओके, यू विल गेट दिस आंसर. ठीक है, अभी ये आंसर को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल. तो यहाँ पे कितना नंबर जीरोज है, 1 2 3 4. सो वी राइट द नंबर हियर फर्स्ट, दैट इज 33125. ठीक है ना, यहाँ पे 4 डेसिमल है, सो लेट अस काउंट 1 2 3 4. सो 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड. सो दिस इज वन मेथड विच इज लिटिल लॉन्ग एंड डिफिकल्ट. नाउ आई विल शो यू द शॉर्ट मेथड. ठीक है, अभी शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे, जस्ट चेंज द पेन. यस, यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 5/16. ना ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम लोग ने मिक्स फ्रैक्शन को क्या किया था, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. अभी यहाँ पे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली राइट दिस एज 3 + 5/16. ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. ऑलराइट, अभी क्या करेंगे, ये 16 को हम लोग इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू इज 3 + 5/16. ना 16 को क्या करना पड़ेगा, 625 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अभी नीचे किया हुआ है तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हम लोग करेंगे व्हाट आंसर वी विल गेट, 3 + 10,000. ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. नाउ दिस इज इजी ना, ये मल्टीप्लाई करने से अच्छा तो ये मल्टीप्लाई इजी है. सो 625 को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. सो लेट अस सी एंड मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हम लोग को सेम आंसर आता है कि नहीं. ठीक है, सो 5 5 ज़ा 25, 2 विल बी कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 + 2 2 and 1 will carry over, 5 6 ज़ा 30 and 1 31. so what answer you are getting, you are getting the answer as here 3135. ठीक है, ये आंसर आया. अभी यहाँ पे 3 है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस 3
नाउ यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, ठीक है, ये नंबर वैसे के वैसे लिखेंगे, ऑलराइट, और देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पे लगाना है. नाउ वी हैव गॉट द आंसर, वी जस्ट हैव टू पुट द डेसिमल. तो डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल. क्लियर? सो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप इम्प्रॉपर करना चाहते हैं तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा. अगर आप मिक्स नहीं करके ये अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड? Now let us do the fourth sum. Now I'll write down the question. Fourth sum is 137 13 upon 625. So this is a mixed fraction, and if we convert this into an improper fraction, it will be very difficult. So what I will write here, I will write here 137 plus 13 upon 625. Okay. Now the next what we have to do is 137 write as it is, and 13 625 को हम लोग को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग को आंसर वी वांट आंसर इन 10, 100, 1000 और 10,000. ठीक है, सो 625 को अगर मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी सो आई विल गेट द आंसर एज 10,000. ठीक है, सो आई विल टेक 16, फिर अगर नीचे अगर मैंने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 16 ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व इट. दैट इज 137 16 multiplied by 13 multiplied by 16, your answer will be 208. ठीक है, so I will directly write here 208 upon 10,000. ठीक है, now so कैसे लिखना पड़ेगा, first we will write 137 as it is plus, अब ये 208 को हम लोग कैसे लिखेंगे, बेसिकली 10,000 को कितने जीरोज रहते हैं, 4 जीरोज रहते हैं. so how you are going to write, first you are going to put 0.0208. ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे हम लोग ने डाला है, आफ्टर 4 डिजिट्स. क्लियर? कैसे लिखना है? ठीक है ना, आपको ऐड करना है ना, ऐड करते समय हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग ने ये नंबर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे. अगर इनको ऐड करेंगे हम लोग तो व्हाट वी विल गेट 137.0208. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल हाउ टू डू एडिशन. ठीक है, फॉर नाउ अंडरस्टैंड हाउ आई हैव डन एंड योर फाइनल आंसर इज 137.0208. Clear how to solve it? Okay. Now we have solved till question number 4. Remaining question number 5 and 6 we are going to learn in next video. Thank you.